आप कहाँ से वो कर सकते हैं सबको गुड मॉर्निंग। वीडियो हटा देंगे तो फॉलो नहीं कर पाएंगे। नहीं हटाइए बस। हेलो, मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? मॉर्निंग सर। फाइन सर। So without any delay, we should start our work. Today which topic we should start? सर फोटोग्राफ। Photograph. In previous पोयम session, ए फोटोग्राफ। so before photograph is a poem, and before photograph we have to study figures of speech. यस सर। In previous session I told you na. यस सर। In previous session I told you. Everyone, first of all, now listen to me. You mute your mic. Good morning, Very sir. good morning. You mute your mic. And those who wants to reply my answer, he or she will unmute his or her mic. Okay? Suhana Chaurasia, riders, mute your mic. Neha Yadav, mute your mic. Aditya Yadav, yes, good. Very nice. गुड मॉर्निंग सर। Very good morning. Now, let's start. Figures of speech. Figures of speech is the very important poetic device of English poetry. With the help of figures of speech, we can identify and we can decorate the poetry which has been composed by the poet. Okay? Figures of speech ग्रामर का वो पार्ट होता है जिसके हेल्प से हम पोएट्री को डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ रही है? Raise your hand if you want to say anything. Figures of speech. Yes, Nandani Gupta. Swati Kushwaha. Yes, what happened? Shreyans Rai. Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. Now you are late, na? Yes, sir. Be careful regarding your time. Do you have any idea about figures of speech? यस सर। Say, Swati फिगर Kushwaha. ऑफ यस सर। फिगर ऑफ स्पीच इज अ वर्ड और अ फ्रेज that possesses a separate meaning from its literal definition. Very good. Figures of speech उसको कहते हैं कि जब हम फिगर्स ऑफ स्पीच के हेल्प से हम किसी भी पोयम को डेकोरेट करते हैं। जिस तरीके से हम लोग एज वी आर whenever we have to go somewhere we have to prepare ourselves. In the same way, whenever the composer compose the poem, in order to decorate the poem, he or she is using the figures of speech in his or her poetry. ठीक है? जिस तरीके से हम लोग कहीं जाते हैं और जाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करते हैं उस जगह के अकॉर्डिंग, ठीक उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ठीक उसी तरीके से जो पोएट होता है, जो पोएटिस होती हैं, वो अपने पोयम को डेकोरेट करने के लिए जब वो पोयम को कंपोज करते हैं तो पोयम को कंपोज करते समय जब उनको डेकोरेट करना होता है तो डेकोरेट करने के लिए वो फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। ठीक है? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस। फिगर्स ऑफ स्पीच को ही हम पोएटिक डिवाइस के नाम से भी जानते हैं।
बी केयरफुल, फिगर्स ऑफ स्पीच को ही हम पोएटिक डिवाइस के नाम से जानते हैं. समटाइम्स दिस क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस लेज इन द गिवन स्टेंजा. कभी कभी ये क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में कि, या फिर आपके एक्सरसाइज में, कि कौन सा पोएटिक डिवाइस इस पर्टिकुलर स्टेंजा में है. तो जिसको पता होगा वो उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा. द स्टूडेंट्स, द पर्सन हु नोज द डिफिनीशन and how to identify the figures of speech, he or she is able to know, and he or she can find out which figures of speech has been laid down on the given stanza. As we will go through the poem, we will be able to find out the poetic device, we will be able to find out the figures of speech of the given stanza. So before starting to poetry, we should know the figures of speech. I hope you all have studied figures of speech in class 10th and 9th. Have you studied? Yes, No, sir. sir. Yes. तो पढ़े हैं सर. Very good. सर उतने अच्छे से नहीं पढ़े हैं. Yes, sir. अच्छा ठीक है, डोंट वरी. अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट तो है नहीं? No, sir. नो सर. चलिए फिगर्स ऑफ स्पीच हम समझते हैं. एक बार हम अभी जो हमने फिगर्स ऑफ स्पीच बताया समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. यस फिगर्स सर. ऑफ स्पीच किसको कहते हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच के माध्यम से What? listen, with the help of figures of speech we means poet or poetess, we can decorate the poem or poetry. ठीक है. अच्छा, किसी को डाउट है क्या कि डिफरेंस बिटवीन पोएम एंड पोएट्री? यस सर. किसको? सर कृष्णा कुमार दुबे. हाँ, क्या आपको डाउट है? यस सर. आपको पोएम और पोएट्री के बीच में डिफरेंस नहीं पता है? नो सर. अच्छा ठीक है, वेट. एनीबडी एल्स? अल्ताफ राजा? यस सर. गुप्ता, अनुराग कुमार, एनीबडी? स्वाति कुशवाहा? यस से. डू यू हैव आल्सो डाउट बिटवीन पोएम एंड पोएट्री? सर Yes, पोएम sir. यानी कविता और पोएट्री यानी काव्य होता है. यस सर. पोएम मतलब कविता और पोएट्री मतलब? मैंने गेस किया सर. स्टूडेंट्स, कृष्णा कुमार, listen Yes, very sir. carefully. Poetry is the plural form of poem. Are you getting my point? यस सर. हाँ, पोएट्री इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ पोएम. एक कविता को हम पोएम कहते हैं और एक से अधिक पोएम को हम पोएट्री Poetry. कहते हैं. बस सिंपल. ठीक है. अब Yes, तो sir. याद रहेगा. नाउ इट विल Yes, sir. इन योर माइंड. यस Yes, sir. सर. हाँ, पोएट्री इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ पोएम. अगर कोई पूछे कि पोएट्री और पोएम में क्या डिफरेंस है, तो आप बताएंगे कि पोएम इज द फॉर्म ऑफ सिंगुलर एंड पोएट्री इज द फॉर्म ऑफ प्लूरल. प्लूरल. Nothing else. And in another sentence we can say that poetry is the plural form of poem. सबसे आसान है कि poetry is the plural form of poem. ठीक है? यस सर. हाँ. One definition I have written here on the board. You may note it down. The definition of figures of speech are poetic device. Figures of speech, किसे कोई अगर आपसे पूछे कि figures of speech की definition, बार बार तुम you always recite the figures of speech. Do you have the idea of definition out of it? तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं. ठीक है. One definition has been written here. You may note it down. Figures of speech oblique poetic device. यानी कि figures of speech को ही हम poetic device कहते हैं. A figure of speech, just I am repeating and you note it down.
A figure of speech is a departure from the ordinary form of expression. Once again, a figure of speech, remember, not figures, figure. A figure of speech is a departure from the ordinary form of expression, comma, or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect. A greater effect. You all have written? Yes, sir. Should I revise Yes, once sir. again? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, once again, just I am going to repeat. A figure of speech is a departure from the ordinary form of expression, comma, or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect. ठीक है, ये हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन हो गया. अगर हमसे कोई पूछे तो हम फिगर्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन बता सकते हैं. यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं? अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. जो एक ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होता है उससे काफी दूर होता है. ठीक है, सामान्य जो लिखने की कला होती है, जो जनरल राइटिंग स्किल होती है, उस जनरल राइटिंग स्किल से ये फार फ्रॉम अवे है. या द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट. जो जनरल इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो जनरल आइडियाज होते हैं, उन आइडियाज से बेहतर, उन्हीं आइडियाज को हम बेहतर तरीके से जब उसको डेकोरेट कर सकते हैं, तो उस डेकोरेट करने की जो क्रिया होती है, जो डेकोरेट करने का जो एक्शन होता है, उस एक्शन को हम फिगर्स ऑफ स्पीच कह सकते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब हम as according to the list of figures of speech, there are more than 100 figures of speech, but according to our syllabus we will study a few. कुछ 7-8 6-7 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है. ठीक है, नंबर 1 सिमिली, नंबर 2 मेटाफर, नंबर 3 personification, number 4 just I am repeating, writing. सिमिली. हाँ, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? हो गया, ठीक आ रहा है.
चलो कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच है जिनको हम पढ़ेंगे। कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच हैं इसको हम अभी आप क्लियर कर देते हैं। पहला सिमली, दूसरा मेटाफर, तीसरा पर्सोनिफिकेशन, next one is apostrophe, next one is hyperbole, next one is oxymoron, then alliteration, सर दिखाई नहीं दे रहा। नीचे नहीं दिख रहा है? अच्छा चलो इसको नोट करो। हाँ, सर। नेक्स्ट वन इज एलिट्रेशन, हम बोल रहे हैं इसको नोट करो। एलिट्रेशन, ALLI TERATION, once again ALLI TERATION, alliteration, and last one is onomatopoeia, ONOMATOPEIA, ठीक है? once again ONOMATOPOEIA, onomatopoeia। कितने हुए? 8 sir, 8 हुए थे। Okay, there are 8 figures of speech which we have to study according to our syllabus. Okay, यस सर। हाँ, ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, क्योंकि जो भी हम पोएट्री पढ़ेंगे, जो भी हम पोएम्स पढ़ेंगे, उन पोएम्स में कुछ ऐसे स्टेंजाज होंगे जिन स्टेंजाज में इस फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया होगा। तो जब हमें पता होगा तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है? नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन। ठीक है? पहले एक के बाद एक हम समझते हैं, फिर उसके बाद इसका डिफिनीशन आपको बताएंगे। ठीक है? फर्स्ट वन इज सिमली। First one is simile. Simile is the figures of speech through which we compare two different objects by using so, like, as. याद रखिएगा, so, like, as। इन तीनों में से किसी एक का या इन तीनों का यूज करके अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम सिमली को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है? क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई द सिमली। डिफिनीशन ऑफ सिमली इज द फिगर्स ऑफ स्पीच। बहुत ध्यान से समझना बेटा। Simile is the figures of speech through which we compare two different objects by using so, like, as। हम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को जब so या like या as
से कंपेयर करते हैं, का यूज करके कंपेयर करते हैं, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि देयर इज अ सिमिली। जैसे हम कह सकते हैं यू आर as brave as lion। और ध्यान से समझना है, पॉइंट आउट, यू आर as brave as lion। First of all, you find out two different objects. What are the two different objects are here? You and lion. You and lion. Very good. You. You and lion. These two are the different objects in this sentence. Lion. And here, you is compares to the lion. ठीक है? जब Yes, sir. यहाँ पे यू को हम लायन से कंपेयर कर रहे हैं कि तुम कितने बहादुर हो, तुम इतने बहादुर हो जितना कि शेर, और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए हमने एज का यूज किया। ठीक है, हमने एज का यूज किया। तो जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को हम कंपेयर करते हैं, सो, लाइक या एज, इन तीनों में से किसी एक का या दोनों का यूज करके जब हम कंपेयर करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस सेंटेंस में अगर कोई पूछे कि इस सेंटेंस में, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, विच फिगर्स ऑफ स्पीच इज हियर, तो हम क्या कर सकते हैं, देयर इज अ Simile. सिमिली। Simile. सिमिली, यस, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में सिमिली है। Yes, sir. Thy soul was like a star. Next example is thy soul was like a star। दाई सोल, ये पोएम की लाइन है, दाई सोल, दाई मीन्स योर, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये ओल्ड इंग्लिश है, दाई, दाई मीन्स योर, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार, दाई ऑब्जेक्ट और स्टार इज ऑब्जेक्ट, लाइक इज द वर्ड थ्रू विच वी कंपेयर्स। ठीक है, Yes, sir. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. यस, दाई सोल Yes, sir. लाइक अ स्टार, तुम्हारा सोल, तुम्हारी अंतरात्मा कैसी है, एक स्टार की तरह है। ठीक है, तो जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को हम कंपेयर करते हैं सो लाइक एज के थ्रू, तो हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में, दिस सेंटेंस, इन दिस सेंटेंस वी कैन फाइंड आउट द सिमिली। जब आप पोएम पढ़ेंगे तो पोएम में आपको मिलेगा, और वहां पे आपको फाइंड आउट करना होगा, देयर यू विल हैव टू फाइंड आउट द सिमिली, देयर यू विल हैव टू फाइंड आउट द फिगर्स ऑफ स्पीच। ओके, Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट इन सिमिली? No, sir. No, sir. बहुत ध्यान से No, समझना sir. बेटा, डिफिनीशन आई विल सेंड यू, आई विल गिव यू द डिफिनीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको हम पहचानेंगे कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई द पोएटिक फॉर्म which has been composed by the poet by using the figures of speech. In that condition, when the stanzas will come in front of us in our examination paper, then how will we identify
which figures of speech are there. So first you try to know the figures of speech. You try to know how you will identify the figures of speech. Okay, definitions are in your book. I will also give you the definition through Yes, WhatsApp, don't worry. But first of all you try to understand it, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी होता है. अक्सर क्या होता है कि फिगर्स ऑफ स्पीच हम पूरी पोएट्री पढ़ जाते हैं, पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है और हमें फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में मालूम ही नहीं होता है. ठीक है, ये सिमली हो गया. आई होप देयर इज नो डाउट इन सिमली. no sir, No, sir. नेक्स्ट No, वन sir. इज मेटाफर. नेक्स्ट वन इज मेटाफर. यू मे नोट इट डाउन. नोट करना है तो आप इसे नोट कर लीजिए पहले. कर लिए कर लिए. वेरी गुड. नेक्स्ट वन इज मेटाफर. Next one is metaphor. Metaphor दिख रहा है? Yes, sir. yes sir, दिख रहा है. ठीक है. दिख रहा है META. हाँ ठीक है. Metaphor. Metaphor is also known as implied simile. First of all, you know it. Implied simile. IMPLIED. Implied simile. मेटाफर को हम इम्प्लाइड सिमिली भी कहते हैं. कभी कभी ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज इम्प्लाइड सिमिली. अब पता होता है कि हमको मेटाफर पता है और इम्प्लाइड सिमिली के बारे में पता ही नहीं है. वी आर नॉट अवेयर विद इम्प्लाइड सिमिली. तो आप इसको समझिए कि इम्प्लाइड सिमिली इज द सिनोनिम. वी कैन से implied simile is the synonym of metaphor, or another sentence we can say that metaphor is also known as implied simile. metaphor को हम implied simile के नाम से जानते हैं. Is that clear? yes sir, Yes. अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि implied simile कहाँ है? simile का पहला एग्जाम्पल क्या था? What we have studied? The first example of simile. you are You are as brave as lion. ठीक है, उसमें क्या था अब समझिएगा. अब इन दोनों चीजों को समझिए. सिमिली और मेटाफर में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है. देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर. इन मेटाफर वी आर आल्सो compares two different objects. As we were comparing two different objects in simile, जिस तरीके से सिमिली में हम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते थे, उसी तरीके से हम मेटाफर में भी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं. बट दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ इज इन सिमिली व्हाइल वी वर कंपेयरिंग टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट we were using supporting word so like as. Is that clear? yes sir, But here in metaphor we are not using any supporting word. हम किसी भी supporting word का यहाँ पे मेटाफर में यूज नहीं करेंगे. ठीक है. अब आप ये बताइए कि आपने सेंटेंस जो लिखा था, जो फर्स्ट एग्जांपल आपने लिखा था कि यू आर एज ब्रेव एज लायन, इसी सेंटेंस को अगर मेटाफर के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? sir, you are brave You are a lion. lion. You are a lion. Yes, You are a lion. you are a lion. Very good. You are a Lion. lion.
यू आर अ लायन, यहां भी हम कंपेयर कर रहे हैं यू को लायन के साथ, बट हियर देयर इज नो एनी सपोर्टिंग वर्ड, लेकिन यहाँ पे हम किसी भी सपोर्टिंग वर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं। समझ में आई? यस सर। यानी कि सिमली में जब हम सो लाइक एज का यूज करके और दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपेयर करते हैं तो वहां पे सिमली होता है, लेकिन मेटाफर में हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कंपेयर तो करते हैं लेकिन बिना किसी सपोर्टिंग वर्ड के, यानी कि यहाँ पे हम सो लाइक एज का यूज नहीं करते हैं। another example was thy soul was like a star, इसको हम क्या कर सकते हैं? thy The soul was Thy soul was the soul was a star. thy soul was a Star. star. Very good. Thy soul was a star. दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, thy soul और स्टार, और इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं बिना किसी सपोर्टिंग वर्ड के, विदाउट सो लाइक। क्लियर? Yes sir. मेटाफर क्या होता है समझ में आया? Yes sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज Personification. पर्सोनिफिकेशन। Personification. पर्सोनिफिकेशन कहते हैं कि जब personification is the figures of speech in which inanimate objects and abstract ideas are tough of as having life, यानी कि पर्सोनिफिकेशन उस फिगर्स ऑफ स्पीच को कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन इज द फिगर्स ऑफ स्पीच थ्रू विच वी कैन से दैट inanimate objects or abstract ideas shows like a life, ठीक है? वो एक जीवन की तरह, जैसे लगता है कि उसके अंदर जीवंत है, उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। हिंदी में इसका होता है मानवीकरण। जैसे डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, for example, death lays his eyes hand on king, थोड़ा सा इसको समझने में दिक्कत आ सकती है। डेथ लेज हिज आइज हैंड ऑन किंग, सर वहाँ पे आईसी होगा ना? ICE वाई his eyes hand on kings, डेथ लेज, ठीक है? डेथ लेज his eyes hand on king, his eyes hand on king। अब इसको ध्यान से समझिएगा, मानवीकरण यानी कि डिफिनीशन है, पर्सोनिफिकेशन बताता है कि पर्सोनिफिकेशन वो फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज किसको कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज किसको कहते हैं? पहले ये तो समझ में आए कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज किसको कहते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया? सर जो कल्पना से हमारे होता है। अच्छा सर वो आइडिया जो कल्पना से आती है।
अच्छा छोड़ो, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को छोड़ दो। एब्स्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? भावना को, भाव, भावना को तो फीलिंग कहते हैं। I भी सर भाव, भाव, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं उस चीज को जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा है? यस सर। यस सर, तो भाववाचक होता है ना। हाँ, भाववाचक, वही सर भाव बोल रहे थे। हाँ अच्छा। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज उसको कहेंगे कि उस आइडियाज के बारे में जिसको हम देख नहीं सकते हैं बट वी कैन फील। फील दैट। ओके, वी कैन फील। तो पर्सोनिफिकेशन उसी को कहते हैं कि पर्सोनिफिकेशन वह फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो दिखता नहीं है बट वो एक ऑब्जेक्ट होता है, या एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होता है जिसके अंदर कोई जिंदगी होती है, जिसके अंदर कोई लाइफ होती है। जब उसके अंदर कोई लाइफ होगी और वो एक आइडियाज होगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। उसके लिए एग्जांपल है डेथ लेज, मौत, डेथ लेज, मौत लेटी हुई है। कहां पर लेटी हुई है? हिज आइज हैंड ऑन किंग। लेकिन इसका ये होगा कि आइज हैंड ऑन किंग, जो एक राजा, ये एक्चुअली दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम ओ कैप्टन माई कैप्टन। ओ कैप्टन माई कैप्टन एक पोयम है, पोयम से ये लाइन ली गई है। और यहाँ पे बताता है कि लास्ट में जो कैप्टन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन, जब वो जाते हैं अपने देश को बचाने के लिए, लड़ाई में लड़ने के लिए, और जब वो शहीद हो जाते हैं और वो अपने डेक के ऊपर लेटे हुए होते हैं, तो ओ कैप्टन माई कैप्टन में ही लाइन लिखी गई है कि डेथ लेज हिज आइज हैंड ऑन किंग। राजा तो डेथ कर गया है, अब्राहम लिंकन जो थे वहां पे डेथ कर गए ऑन द डेक ऑफ द शिप। लेकिन पोएट लिखता है जब उस पोएम को, तो उस पोएम में एक लाइन लिख देता है कि डेथ लेज हिज आइज हैंड ऑन किंग। राजा नहीं मरा हुआ है, मौत जो है वो राजा के बाहों पे लेटी हुई है। इट सीम्स दैट। ठीक है, किसी को कोई डाउट? डू यू हैव एनी डाउट? नो सर। नो सर। एक और एग्जांपल देते हैं। लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड। यहां पे क्या है? Nobody can see, everybody can feel it. कोई देख नहीं सकता है, हर आदमी इसको फील कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, एक आइडियाज ही तो है, भावनात्मक पीछा। ठीक है। देयर इज द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, और इस एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज में एक जिंदगी दिखाई दे रही है, एक एनर्जी दिखाई दे रही है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कह सकते हैं लव इज ब्लाइंड। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देयर इज पर्सोनिफिकेशन। किसी को कोई डाउट? नो सर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके, नो सर। nobody has doubt. No sir. In poetic form we have studied